السلام علیکم. ویلکم ٹو کانفلکٹ کارڈ. دوستو 21 مئی کو پاکستان میں ایک بہت ہی زیادہ دردناک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ خوددار بس ٹیگ، جس کے بارے میں آپ سن ہی چکے ہوں گے کہ اسکول کے بچوں کی بس کو نشانہ بنایا گیا ہے BLA کی طرف سے، موسٹ پروبیبلی، کیونکہ ابھی تک انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی. اور اس اٹیک میں، اس IED بلاسٹ میں ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ 4 سے 5 لوگ، جس میں زیادہ تر بچے ہی ہیں، وہ شہید ہوئے ہیں. ایک بس ڈرائیور، ان کی شہادت ہوئی ہے، اور ملٹیپل جو بچے تھے وہ زخمی بھی ہیں. ان بچوں کے اسکول بیگز دیکھ سکتی ہیں جن پر جلے ہوئے کا نشان، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کچھ چیزیں، کیونکہ یہ چیزیں بس کے اندر موجود تھیں. سو بلاسٹ کا جو زیادہ امپیکٹ تھا وہ بس کی ایک سائڈ پر زیادہ آیا ہے. دوسری سائڈ پر جو بچے تھے اسی وجہ سے وہ زخمی حالت میں تھے، بٹ الحمدللہ وہ بچ گئے. ابھی تک جو انٹل انفارمیشن ہے پاکستانی گورنمنٹ کی، وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے انڈین بیکڈ BLA ہے. کیونکہ اس سے پہلے جب BLA نے جعفر ایکسپریس کا واقعہ بھی کیا تھا تو شروع میں انہوں نے یہ واقعہ نہیں مانا تھا، بٹ فردر آن انہوں نے اس کی رسپانسبلٹی کلیم کی. پھر BLA کے جو اسپوکس پرسن ہے وہ انڈین میڈیا پر بیٹھ کے پراپر اس کی ڈیٹیلز دے رہے تھے کہ BLA کی کس ونگ نے کس طرح وہاں آپریٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ BLA کی جو آفیشیل ویڈیوز تھیں وہ انڈین میڈیا پر چلائی جا رہی تھی، اور وہ ایک بڑا ثبوت تھا پہلی دفعہ کہ BLA اس طرح بلوچستان کے معاملات کو مینوپولیٹ کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف رپورٹ کر رہی ہے. اس سے پہلے بھی انڈین میڈیا پر BLA کو لے کر بات ہوتی رہی، لیکن جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد یہ بات پکی ہو چکی تھی. انڈیا کس طرح BLA کو سپورٹ کرتا ہے، اس کے لیے یہ آپ مختلف انڈین آفیشلز، اس کے ساتھ ساتھ کچھ BLA کے جو اسپوکس پرسن ہیں یا ان کے ماؤتھ پیسز ہیں، ان کے یہ بیانات سنیں. RAW is involved in some activities related to the Baloch liberation movement within Pakistan. Activities seem to be revolving around create a criminal sort of a mindset within the Baloch liberation and lead to instability within Pakistan. These activities have been of criminal nature. These have been of anti-national, terrorist, leading into the killing of or maiming of Pakistani citizens also. मोदी साहब हमें मदद देना चाहते हैं तो आर्म्स की हमें मदद करें, हमें बंदूक की मदद करें ताकि हम अपने दुश्मन को उससे मार. बलूचिस्तान के लोगों ने हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का. आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने बात की थी बलूचिस्तान की. अगर हम पाकिस्तान के अंदर उनकी जो इंसरेक्शनिस्ट मूवमेंट्स हैं उनके अंदर थोड़ा बढ़ावा देते हैं, तेल फेंकते हैं, तो हमें क्या रोकता है हमें करने के लिए? हमें वो करना चाहिए, और ये तभी होगा जब हम उनका खून बहाएंगे. You assimilate it means that is what is required as part of the strategy. On live television, I would like to make a claim. I am in touch with Baloch freedom fighters. तारीफ भी करना चाहता हूं और BLA को सलूट भी करना चाहता हूं. मानने का इख्तियार किसी को नहीं है कि वो मुझसे छीन ले, और वो इख्तियार मैं और मेरी नस्ल वक्त और हालात की छुआ करके उसका इस्तेमाल करेंगे. जब तक बगावत की नस्लें नहीं उठेगी, बगावत कि हामिद शाहीन के साथ भी यही हुआ और गफार लांगो के साथ भी यही ड्रामा कराची में हुआ. उसके करीबी अजीज BLA में था तो गफार का हालात सुनकर उसने BLA को खैरबाद किया और वो किसी और मुसल्लह तंजीम में चला गया. नवाब साहब ने मजीद कहा कि माल मट्टी सिर्फ आग का नहीं है, ये कौमी तहरीक का है. Then we start working on the vulnerabilities of Pakistan. It can be economic, it can be internal security, it can be political, it can be anything. Making it difficult for them to manage internal political balance or internal security. I'm not going into those details. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. Breaking Pakistan into 4 should be our long-term strategic objective. Balochis separate, Pakhtunis separate. पाकिस्तानी परचमों को बलूचिस्तान में कोई काम ही नहीं है. नहीं, जला देना ठीक है. मैं कहता हूँ उनका काम ही नहीं, उनको निकलना चाहिए. BLA की हम बात करें, BLF की बात करें, BRA की बात कर लें, आप उसकी मजम्मत करती हैं. आपको लगता है कि वो जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो शदीद गलत है, वो गलत कर रहे हैं बहुत ज्यादा. मैंने एक मरतबा कहा, बार बार इस सवाल को रिपीट ना करें प्लीज. उनका काम यही है, महारंग जो हो उनका काम यही है कि लोगों को नफरत लोगों के दिल में पैदा करना, रियासत के खिलाफ उकसाना, रियासत के खिलाफ बातें करना. महारंग का अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखें, महारंग के जो वालिद थे वो एक तलदम तंजीम के साथ, BLA के साथ एफिलिएटेड थे. मच हमले में दहशतगर्दों का झूठ बेनकाब हो गया. लापता अफराद के नाम पर मुल्क को दुनिया में बदनाम करने की सोची समझी साजिश खुलकर सामने आ गई. दहशतगर्द अब्दुल मदूद का लापता अफराद में शामिल करके प्रोपेगेंडा किया जा रहा है. अब्दुल मदूद मच ऑपरेशन में मारा गया. दहशतगर्द की बहन 2021 से भाई की गुमशुदगी का नाग लग रही. Those who are fighting, वो ये नहीं कहते कि हमारी कोई शिकायत है, वो कहते हैं कि हम बलोच आइडेंटिटी पे खुदा न खास्ता पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं. Terrorism in the name of religion is terrorism. Terrorism in the name of this so-called कौम परस्ती is नाराज बलोच. जी, वहाँ पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया और उनकी कुल तादाद
33 है। जो क्लियरेंस ऑपरेशन था इसमें किसी भी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। 25 अगस्त की रात को दहशतगर्दी के जो वाकयात हुए वो इसी मजमूम बैरूनी एमा और फंडिंग पर किए जाने वाले जारी शुदा खेल का हिस्सा थे। ये करने और करवाने वालों का इस्लाम से, इंसानियत से, बलोच रवायात और इकदार से कोई ताल्लुक नहीं है। दर हकीकत नहत्ते शहरियों को इस तरह बर्बरियत का निशाना बनाना और उस पर फख्र करना इस जुल्म को करने और करवाने वालों की जहनियत और मायूसी की अक्कासी है। यहाँ मैं दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को जो किसी भी शक्ल में मौजूद हैं उनको वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि शहरियों की जानो माल और बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मनों से रियासत आनी हाथों से निपटेगी और इन जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अब इस पूरे सिनेरियो के बाद पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा पाया जा रहा है। ख़ास तौर पर लोगों का ये मानना है कि अगर पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत ना पेश करते हुए पाकिस्तान पर बिलावजह हमला कर दिया था, तो BLA के इस पूरे अटैक में तो पाकिस्तान के पास प्रॉपर सबूत हैं। इंडिया के अपने ऑफिशियल्स के बयानात मौजूद हैं कि BLA को सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें वेपन्स देनी चाहिए, उन्हें इंडिया में स्टेट स्पॉन्सर्ड विजिट्स तक प्रोवाइड करने चाहिए। और इससे पहले कई ऐसे BLA टेररिस्ट थे भी जिन्होंने खुद ये इकरार किया हुआ है कि इंडिया से उन्हें प्रॉपर सपोर्ट मिलती है। उन पर हम इससे पहले वीडियोस बना चुके हैं, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं। और पाकिस्तान में भी अब सेम वही एक गुस्सा पाया जा रहा है कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूम का 2.0 वेरिएंट लॉन्च किया जाए, जिसमें अब इंडिया पर दोबारा से कुछ स्ट्राइक्स की जाए। लेकिन यहाँ आम चीज़ ये है जिसे हम एनालिटिकली या ऑब्जेक्टिवली रखेंगे आपके सामने कि इंडिया ने पहलगाम अटैक के बाद कोई सबूत प्रोवाइड नहीं किया। इसी वजह से दुनिया में कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने विक्ट्री अता की। अगर पाकिस्तान भी इस अटैक के फ़ौरन बाद इंडिया पर इल्ज़ाम लगा के वॉर मॉन्गरिंग करेगा तो दुनिया में हमारे इत्तेहादी भी हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। इसके लिए जो वाहिद रास्ता है करंटली वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स प्रॉपर इसके सबूत लेकर आएँ, क्योंकि इससे पहले तो BLA जो कर रही है उसके पीछे इंडिया है, इसमें कोई शक नहीं है किसी को भी। और इवन दो कि BLA इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जो करंटली खुजदार में अटैक हुआ है इसके पीछे कौन है और इसके बारे में इंडिया ने किस तरह मदद फराहम की BLA को, इसके सबूत पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से आने चाहिए ताकि इंटरनेशनल फोरम पर वो सबूत दिखाए जा सकें कि पाकिस्तान प्रॉपर प्रूफ प्रोवाइड कर रहा है कि इंडिया किस तरह बैक कर रहा है BLA को, जिसने इन स्कूल के बच्चों को निशाना बनाया। जस्ट इस वजह से बिकॉज वो आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे थे, हालांकि वहाँ के सिविलियंस भी पढ़ रहे होते हैं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आर्मी की औलाद है या किसी सिविलियन की औलाद है, वो हैं पाकिस्तानी, सिंपल एज दैट। और जिस तरह अवाम गुस्से में थी कि मुरीद के आज़ाद कश्मीर में जब इंडिया ने मिसाइल अटैक्स किए 6 मई को, सेम वैसा ही गुस्सा इस वक्त अवाम में पाया जा रहा है कि ये क्या बात हुई कि इंडिया अब अपनी हार का बदला प्रॉक्सीज के थ्रू निकाल रहा है, क्योंकि वैसे तो वो पाकिस्तान के खिलाफ ना जीत सका, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ी, तो अब इंडिया अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है और इसमें भी इंडिया बच्चों को ही निशाना बना रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली BLA को फितनाउल हिंदुस्तान का नाम दिया गया है। और इसका एक अहम सबूत मैं आपको दूं कि जब जाफर एक्सप्रेस भी हुई तो पाकिस्तान ने बिलावजह वॉर मॉन्गरिंग करने की बजाय BLA के उन सारे दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया जिन्होंने वो सब काम किया था। उसके बाद मल्टीपल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए जिसमें 100 से भी ज़्यादा BLA के टेररिस्ट मारे गए। और ये वो वक्त था जब रशिया जैसे कंट्रीज़ ने भी पाकिस्तान को फुली सपोर्ट किया, क्योंकि पाकिस्तान ने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर काम किया। और इवन दो कि ना पाकिस्तान की आवाम ने ना पाकिस्तान के मीडिया ने बिलावजह की वॉर मॉन्गरिंग की, इस दफ़ा भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि प्रॉपर सबूत लाए जाएं और उसके बाद इंडिया को जिम्मेदार ठहराया जाए, क्योंकि जब आपके पास सबूत होंगे तो फिर इवन जो आपके मुखालिफ भी हैं वो भी खुलकर आपको निगेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ BLA पर गिरफ्त मजबूत करने की ज़रूरत है। इनके खिलाफ एक प्रॉपर ऑपरेशन या इवन जो करंट इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है इनकी इंटेंसिटी बढ़ाई जाए, क्योंकि बलूचिस्तान का रीजन बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। यहाँ पर अगर करंटली कोई भी तरक्याती काम होता है तो वहाँ BLA कोई अटैक करती है, मज़दूरों को वहाँ से अगवा कर लिया जाता है या पाइपलाइंस को उड़ा दिया जाता है, थ्रेटन किया जाता है। और दूसरी तरफ ये रोना भी रोते हैं कि हम तो बलूचिस्तान में तरक्की ना होने की वजह से लड़ रहे हैं, इनका ना तो बलूचिस्तान की तरक्की से कोई ताल्लुक है ना इनका बलोच नस्ल से कोई ताल्लुक है। इनकी हालत सेम वैसी ही है जैसे दाइश इस्लाम का नाम लेकर दहशतगर्दी करती थी और BLA एक नस्ल का नाम लेकर दहशतगर्दी करती है। और जो पढ़े लिखे बलोच हैं, जो मुहिब वतन है, वो खुद इनसे तंग हैं कि उनकी ज़िंदगी भी इनकी वजह से अजीरन हो चुकी है।
और इसके साथ साथ कहा जाता है ना कि जंगी हालात में दोस्त और दुश्मन का पता लग जाता है। तो खुशदार में जो बच्चे शहीद हुए उन पर पाकिस्तान के बड़े ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट प्रॉपर खामोश हैं, उन्होंने चूं तक नहीं की, क्योंकि इसके पीछे BLA है और वो BLA के बारे में थोड़ा कंफ्यूज हैं। तो यहाँ भी लोगों को थोड़ा सा अपनी मुनाफकत पर नज़रसानी करनी पड़ेगी कि वो बच्चे हैं जिनको शहीद किया गया है, तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। BLA आज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करे या कल करे, या ये भी हो सकता है कि इंडियन हैंडलर्स की तरफ से ये कहा गया हो कि आप अटैक करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम ना करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरी इस तरह की इन्हीं की दूसरी ब्रांच से क्लेम करवा ली जाएगी। बट इनकी कोई भी ब्रांच रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करे, वो आज आके BLA की ही कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ब्रांच है। सो दोस्तों, ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।